چلو تھوڑی ہی دور میں جب دیکھو گے وہ زمین بالکل وہ سڑک آپ کو اس طرح نظر آئے گا گویا کہ اس میں پانی ہی پانی ہے. آپ کسی دھوپ سے سفر کرتے ہوئے کسی گھر کے اندر گھسیے. آپ جب گھر کے اندر گھسیے گا تو آپ جلدی دیکھ نہیں پائیے گا. تھوڑی دیر دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ آپ کی روشنی کھلے گی. اچانک کسی روشنی پر آپ کی نظر پڑ جائے تو آپ کو دیکھنے القاریۃ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، کھرکھرا دینے والی، انسان کو چوکنا کر دینے والی، یعنی قیامت کی ہولناکی سے خبر کر دینے والی. کیا ہے وہ کھرکھرانے والی میرے بھائیو؟ اور تجھے کس نے بتایا کہ کھرکھرانے والی کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن انسان پراگندہ حال ہو جائیں گے، انسان بکھرے ہوئے ہو جائیں گے. وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور یہ پہاڑ دھنے ہوئے روئی کی طرح اڑتے پھریں گے. یہ پہاڑ کتنا بھاری ہے، یہ پہاڑ کتنا وزندار ہے، لیکن دھنے ہوئے روئی کی طرح اڑتے پھریں گے. میرے بھائیو فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، نمازیں زیادہ ہوں گی، روزے زیادہ ہوں گے، ان کا ٹھکانہ ایسو عشرت والی زندگی میں ہوں گے. واما من خفت موازینہ، اور جن کی نیکیاں کم ہوں گی، جن کی نیکیاں کم ہوں گی میرے بھائیوں صرف گناہ ہی گناہ ہوگا، برائی ہی برائی ہوگی. فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے، اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے. جب سور پھونکیں گے زمین میں زلزلہ آئے گا، زمین میں بھوکمپ آئے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین ہلا دی جائے گی، جب زمین پوری طرح سے جھنجھوڑ دی جائے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنی اندر بوجھ نکال دیں گے. زمین کے اندر جو خزانے چھپے ہوئے ہیں، زمین کے اندر جو بوجھ ہے، زمین کے اندر لوہ ہے، زمین کے اندر سونا ہے، زمین کے اندر چاندی ہے، زمین سب کچھ نکال دیں گے. میرے پیارے ساتھیوں پھر یہ زمین گواہی دیں گے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ، اس لیے کہ اللہ زمین کو حکم دے گا، اللہ زمین کو قوت گویائی دیں گے، اور زمین کہیں گے اے اللہ یہ فلاں شخص ہے جو زمین میں تیرے ناجیبہ حرکت کیا ہے، اے اللہ یہ فلاں شخص ہے، انہوں نے میرے اوپر غلط کام کیا ہے، انہوں نے میرے اوپر بدکاری کی ہے، اے اللہ انہوں نے زمین میں فلاں کام کیا ہے، اے اللہ فلاں جگہ پہ سینے ماحول تھا، لڑکیوں کی ڈانس ہو رہی تھی، اے اللہ یہ اس جگہ پہ گئے تھے. میرے بھائیوں انسان جو بھی اس دنیا میں گناہ کرے گا زمین کو اللہ حکم دے گا، قوت گویائی دیں گے، اور زمین اپنے اندر ہونے والی تمام چیزوں کو بیان کر دیں گی. اس کے بعد اللہ آخر میں فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جنہوں نے ذرہ برابر بھی زمین میں نیکیاں کی ہوگی ان کو ان کا بدلہ دے دیا جائے گا، اور جنہوں نے ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہوگا ان کو بھی ان کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، ان کو بھی ان کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا. میرے بھائی ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم گناہ کر لیے ختم. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں تنہائی میں گناہ کرتے ہیں، یہ سمجھتے کہ ہم نے انسان کو نہیں دیکھا، انسان نے ہم کو نہیں دیکھا، تنہائی میں کر لیے کون دیکھنے والا ہے. اللہ فرماتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگ اس حال میں آئیں گے ان کے پاس پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی، لیکن میرے بھائیوں وہ نیکیاں کام نہیں دیں گے. اس لیے کام نہیں دیں گے آواز آئے گی یہ فلاں لوگ ہیں جو لوگوں کے سامنے نماز پڑھا کرتے تھے، یہ فلاں ہے جو لوگوں کے درمیان اچھی باتیں کہا کرتے تھے، لیکن ہاں ان کا عمل سنو، یہ تنہائی میں جب ہوتے تھے تو یہ گناہ کے کام کرتے تھے، تنہائی میں ہوتے تو بدکاری کرتے تھے، تنہائی میں ہوتے تھے تو یہ غلط کام کرتے تھے، تنہائی میں ہوتے تو یہ بہت گندا گندا کام کرتے تھے، تنہائی میں ہوتے جب کہیں دیکھا کہ کسان نہیں ہے دوسرے کے فصل کو اپنے پیر سے کچالا کرتے تھے، تنہائی میں ہوتے تو چوری
नहीं किया करते थे। मेरे भाइयों ऐसे भी लोग क़यामत के दिन लाए जाएंगे। इसलिए बेहतर है अंतअबुदल्लाह कअन्नका तरा फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। ऐ लोगों, जब भी कोई इबादत करो ऐसा समझो कि अल्लाह हमें देख रहा है। अगर ये तसव्वुर ना कर सको, अगर ऐसा समझो कि हम अल्लाह को देख रहे हैं, अगर ये तसव्वुर ना कर सको तो कम से कम ये समझो कि अल्लाह हमें देख रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, किसी लोगों को दिखाने के लिए अच्छे अमाल करते हैं, लेकिन मेरे भाइयों जब वो तन्हाई के शिकार होते हैं तो गलत काम करते हैं। ये हुआ क़यामत की कुछ अलामत। अब इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंक दिए। यौम यख़रुजून मिनल अजदास सिराअन कअन्नहुम इला नुस्बिन युफ़िज़ून। जब सूर फूंका जाएगा लोग कब्रों से धड़-धड़ निकलेंगे, कब्रों से धड़ाधड़ निकलेंगे मेरे भाइयों, और वो तेजी से दौड़ते रहेंगे मैदान महशर की तरफ। यानी सूर फूंकेगा, लोग कब्रों से निकलेंगे और गोया कि वो तेज तेज दौड़ रहे हैं, क़यामत की तरफ दौड़ रहे हैं। मेरे भाइयों, कुरान ने नक्शा खींचा, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी। मेरे भाइयों, माँ अपनी बेटी से भागेंगी, बेटी अपनी माँ से भागेंगी, बाप अपने बेटे से भागेंगे, बेटा अपने बाप से भागेगा। मेरे भाइयों, शौहर अपनी बीवी को छोड़ देंगे, बीवी अपने शौहर को छोड़ देंगे। बाप इस दुनिया में बेटे से कितना प्यार करता है, कितनी मोहब्बत करता है, अपने बेटे से कितना चाहता है, लेकिन क़यामत की हौलनाक की देखिए मेरे भाइयों, बेटे को छोड़ देगा, बाप बेटे को छोड़ देंगे। ये कि मियाँ बीवी आपस में पूरी जिंदगी एक साथ रहता है। मेरे भाइयों, जब बड़ा हो गया, जवान था, मोहब्बत किए, बुढ़ापे की आलम में पहुंच गए तो एक दूसरे को नजर रहमत से देखते हैं, रहमत की नजर से देखते हैं। लेकिन वो बीवी अपने शौहर को छोड़कर भागेंगी, शौहर अपने बीवी को छोड़कर भागेंगे। उस वक्त ऐसा होगा कि सिर्फ लोग अपने अपने पड़े हुए हैं, अपने आप की फिक्र में पड़े हुए हैं। मेरे भाइयों, हजरत आयशा बयान करती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, हजरत आयशा कहती है, मैंने सुना अल्लाह के रसूल को कहते हुए, युहशरुन नासु यौमल क़ियामती हुफ़ातन उरातन गुरला। लोगों को जमा किया जाएगा, नंगे पाँव होंगे, नंगे बदन होंगे, नंगे जिस्म होंगे। हजरत आयशा कहती है, कुल्तु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, अन्निसाउ वर्रिजालु जमीआ, औरत और मर्द एक ही जगह पे जमा होंगे, ये ही मैदान होगा, औरत भी होंगी, मर्द भी होंगे। फिर आप कह रहे हैं नंगे बदन उठाए जाएंगे, नंगे पैर जमा किए जाएंगे, उनकी शर्मगाह खुली हुई होगी। औरत भी एक जगह पे, मर्द भी एक जगह पे, औरत देखेंगी मर्दों की तरफ, मर्द भी औरत की तरफ देखेंगे, ये शर्मिंदगी के बाइस होंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आयशा उस वक्त लोग ऐसा मदहोश पड़े होंगे, लोग अपने अपने ख्याल में मुब्तला होंगे, कोई किसी की तरफ देखने का मौका भी नहीं मिलेगा, कोई किसी की तरफ देखेगा भी नहीं, कौन नंगा है, कौन क्या है, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। आयशा कोई किसी की तरफ नहीं देखेगा। उस हौलनाकी को याद कीजिए मेरे भाइयों। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम, आए लोगो अपने रब से डरो, इन्ना ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, यकीनन क़यामत का ज़लज़ला बहुत बड़ा खतरनाक है, बहुत बड़ा डेंजर है। जब ज़लज़ला आएगा, जमीन में भूचाल आ जाएगा, ये धरती हिला दी जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, क़यामत का ज़लज़ला बहुत खतरनाक होगा। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़ियतिन अम्मा अर्ज़ात, ऐ लोगों आप देखोगे हामिला, जो दूध पिलाने वाली औरतें हैं, दूध पिलाने वाली औरतें हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाने से गाफिल हो जाएंगे। जिनके पेट में बच्चा है वो अपने बच्चे को कब गिरा देंगे उन्हें होश नहीं होंगे, उन्हें खबर नहीं होंगे। मेरे प्यारे साथियों, और आप लोगों को देखेंगे व तरन्नासा सुकारा, कि लोग बेहोश है, लोग मदोश है, हालांकि वो बेहोश नहीं है। मेरे भाइयों, वमाहुम बिसुकारा, वो मदोश नहीं है, वो बेहोश नहीं है, ये मारे खौफ के, मारे दहशत के, वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद, ये अल्लाह के सख्त अजाब से बेहोश होंगे, सख्त अजाब से मदहोश होंगे। ये सख्त अजाब की वजह से मेरे भाइयों मदहोश पड़े रहेंगे, कोई नशा वशा नहीं किया होगा।
शराबी को चढ़ा दो, शराब पी लेंगे, उन्हें कहिए ये काम करके दिखाओ। उन्हें अगर ये कहिएगा तुम्हारे अंदर पावर है, अपने बीवी को मार के दिखाओ, मुझे धमकी दे रहे हो, अपनी बीवी को चप्पल उठाए और मारना शुरू कर देगा। ये मदहोश पड़े रहेंगे, उनको ख्याल नहीं कि ये मेरी बीवी है। कभी तो चीफ मिनिस्टर को साला कहेगा, प्राइम मिनिस्टर को साला का साला कहेगा, यानी उन्हें होश नहीं रहेगा मेरे भाइयों। लेकिन उस वक्त का आलम ये होगा, मारे खौफ के, मारे दहशत के बेहोश पड़े रहेंगे, मदहोश होंगे। लेकिन हालांकि वो नशे करने वाले नहीं होंगे, नशे में नहीं होंगे। क़यामत का ज़ल्ज़ला इतना खतरनाक होगा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, फकैफ़ तत्तक़ून इन कफ़रतुम यौमन यजअलुल विल्दान शीबा। ऐ लोगों, उस दिन की हौलनाकी से कैसे बचोगे जिस दिन बच्चे को बूढ़ा बना दिया जाएगा, बच्चे भी बूढ़े हो जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, कुरान की आयतों से जहन्नम के बारे में बता रहा हूं। आपको लचकदार नहीं लगेंगे, लेकिन सुनिए, जरूरी है। यही तो दो चीजें हैं। कब तक दुनिया में रहेंगे, कब तक ऐश करेंगे? ये ऐश वसरत वाली जिंदगी छीन ली जाएगी, ये सुकून वाली जिंदगी हमारी खत्म हो जाएगी। आखिर उस चीज का इंतजार तो हमें ही है मेरे भाइयों। उस दिन की हौलनाकी से बच्चे, अगर आप कुफ्र किए रहें, काफिर रहें, शिर्क में मुब्तला रहें, फकैफ़ तत्तक़ूना यूं कफ़रतुम यौमन यजअलुल विल्दान शीबा। जिस दिन बच्चे भी बूढ़े हो जाएंगे। कोई जवान आदमी 40 साल, 45 साल, 50 साल की उम्र में पहुंचता है, उनका बाल जब पकना शुरू होता है, पहला बाल जो पकता है, और वो इंसान उसको आईने से देखता है या फिर अपने छोटे छोटे बच्चों के जरिए से उसको उखाड़वाता है, तब उसके मन में एक ख्याल आता है कि अल्लाह, ये जवानी ख़त्म हो गई। 40 साल की उम्र गुजार के, 40 साल की जवानी गुजार के जब बाल की सफ़ेदी, सर में सफ़ेदी देखा तो मेरे भाइयों वो ताज्जुब करने लगते हैं कि अल्लाह, अब तो मरना ही है। मेरे भाइयों, ये इस दुनिया की हालत है कि 40 साल की उम्र में हम और आप बूढ़े होते हैं। लेकिन उस दिन की हौलनाकी याद कीजिए जिस दिन बच्चे भी मारे खौफ और दहशत के बूढ़े हो जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद जब लोग मैदान माशर की तरफ जाएंगे, मैदान माशर की तरफ जाएंगे, और ये आग जो यमन की तरफ से निकलेगी, आपको हाँकते हुए ले जाएंगी। मेरे प्यारे साथियों, उस दिन का आलम ऐसा होगा, तुदना शम्सु यौमल क़ियामा हत्ता तकून कमिक़दारि मील। उस दिन का आलम ऐसा होगा कि सूरज माथे के करीब लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। 1 मील के फासले के बराबर सूरज होगा। जो सूरज 14 करोड़ 92,96,00,000 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन हम उनकी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उनकी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए घर में एसी लगा देते हैं। मेरे भाइयों, और ज्यादा गर्मी हुए, घर में कूलर चला दिए, घर में ठंडक का इंतजाम कर दिए, हम पानी पीने के लिए घर में फ्रिज लगा दिए। लेकिन उस दिन की हौलनाकी से कैसे बचिएगा? उस दिन कोई सायेदार जगह नहीं होंगे, उस दिन कोई ठंडी हासिल करने के लिए, ठंडक हासिल करने के लिए कोई जगह नहीं होंगे। घर में आप एसी नहीं लगा सकते हैं, घर में आप कूलर नहीं लगा सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, सूरज 1 मील के करीब लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। राबी कहते हैं, पता नहीं मील कितनी दूर जमीन की मसाफत को कहा गया है, या फिर सुरमादानी में जिससे सुरमा हम लगाते हैं अपनी आंखों में, उस सलाई को कहा गया है। मेरे प्यारे साथियों, फिर उसके बाद फमिनहुम मन यकूनु, फिर उसके बाद लोग होंगे फिल अरके, पसीने में डूबे हुए, वमिनहुम मन यकूनु इला रुकबतैहि वमिनहुम मन यकूनु इला काबैहि व इला हक़वैहि। कोई पसीने में टखनों के बराबर डूबे हुए होंगे, कोई पसीनों में घुटनों के बराबर डूबे हुए होंगे। आमाल के हिसाब से अला कदरी आमालिहिम फिल अरक, अपने आमाल के हिसाब से पसीने में डूबे हुए होंगे। कोई ज्यादा कम गुनाह किया, उनका पसीना सिर्फ घुटनों टखनों के बराबर ही, और ज्यादा गुनाह किया उनका पसीना घुटनों के बराबर होंगे, और ज्यादा गुनाह किया थोड़ी के बराबर उनका पसीना होगा, और ज्यादा गुनाह किया लगाम लगाए, जहां पर नाक में लगाम लगाए जाते हैं वहां तक पसीने होंगे। बिल्कुल गुनाह ही गुनाह, कभी ने किया नहीं की है मेरे भाइयों, वो फिर पसीने में गोता लगाएंगे। उस वक्त का मंजर याद कीजिए,
सूरज 1 मील के करीब लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, इतनी सी बात हो गई। अब लोगों को एक जगह जमा कर दिया जाएगा, कोई इंसान अपना कदम हिला नहीं पाएगा। ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम यौमल क़ियामह, कोई इंसान अपना कदम नहीं हिला पाएगा। जैसे फौजियों का रेस होता है, फौजियों का दौड़ होता है, आपस में कंपटीशन होता है मेरे भाइयों, और ये कहा जाता है जब 1 2 3 की आवाज लगाई जाएगी, 3 बोला जाएगा तो तुम दौड़ना शुरू करना। मेरे भाइयों, उस तरह लोग जमा हो जाएंगे, जमा कर दिए जाएंगे, और कहा जाएगा कि कोई अपना कदम हिला नहीं पाएगा जब तक उनसे 5 सवाल ना पूछ लिया जाए। हत्ता युसअला अन खम्सिन व फी रिवायत नरबा, कहीं पर 4 सवाल का जिक्र है, कहीं पर 5 सवाल का जिक्र है। पहला जो सवाल होगा, अन उम्री फीमा फना, आए लोगों, हमने तुम्हें दुनिया में उम्र दी थी, हमने दुनिया में तुम्हें साल दिया था, हमने तुम्हें दुनिया में उम्र दी थी 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल, बताओ तुमने उस उम्र को कहाँ लगाया, किस उम्र, उस उम्र को किस रास्ते पे खर्च किया। उनसे पूछा जाएगा कि ये उम्र तुमने कहाँ लगाया, ये उम्र तुमने कहाँ गवाई। अगर मेरे भाइयों अच्छे काम में खर्च किए होंगे तो जवाब देंगे नमाज पढ़ने में, रोजा रखने में, लोगों की भलाई करने में। लेकिन हाँ, अगर अच्छे काम में खर्च नहीं किए, कहेगा बीड़ी पीने में, कहेगा शराब पीने में, कहेगा यतीमों को लूटने में, कहेगा रास्तों में बैग लूटने में, कहेगा हमने फला के साथ छिड़खानी करने में। अपने हिसाब से वो जवाब देगा। फिर दूसरा सवाल उनसे किया जाएगा, वअन शबाबी फीमा अबला, ऐ जवानों, ऐ नौजवानों और जवानों दोनों इसमें शामिल है, यानी 15 साल से 40 साल की उम्र को दुनिया में पाने वालों, या फिर 20 साल से 40 साल की उम्र को पाने वालों, ऐ नौजवानों और ये जवानों दोनों सुनो, तुमने इन जवानी को कहाँ लगाए, इन जवानी को कहाँ खर्च किए। जब अल्लाह ने उम्र के बारे में सवाल कर ही लिया था, उसमें जवानी आ गई, लेकिन फिर दोबारा सवाल किया, इसलिए कि इस जवानी की अहमियत अल्लाह बतलाता है। क्योंकि मेरे भाइयों, एक किस्म के लोग वो भी होंगे जो साए के नीचे बैठेंगे, साए के नीचे उनको जगह मिलेगी। वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाहि ताला, एक किस्म के लोग वो होंगे जिन्होंने जवानी में अल्लाह की इबादत की होगी, जवानी में नमाज पढ़ी होगी, जवानी में अल्लाह के सामने सर झुकाए हुए होंगे। मेरे भाइयों, जवानी के बारे में पूछा जाएगा। जवानी की बड़ी अहमियत है। इस जवानी में कोई इंसान अगर मेहनत कर लेता है, दुनिया का ही मामला ले लीजिए, जवानी में मेहनत किए, जवानी में मेरे भाइयों मेहनत किए और नौकरी लग गई, जवानी में मेहनत किए, माल कमा लिए, दौलत कमा लिए, तो ये माल बुढ़ापे में काम आएगा। अगर जवानी में बैठे रहेंगे, जवानी में सुस्ती करेंगे, जवानी में काहिली करेंगे, तो बुढ़ापे के आलम में आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी। जब आपके पास पैसा नहीं होगा, वो बीवी आपका एहतराम नहीं करेगी, आपकी इज्जत नहीं करेगी, क्योंकि आप अगर खिला नहीं पाइएगा, आप पिला नहीं पाइएगा, आप कपड़ा नहीं दे पाइएगा, आप लगता नहीं दे पाइएगा, तो वो आपको छोड़कर चली जाएंगी, आपकी कभी एहतराम नहीं करेगी। इसलिए मेरे नौजवानों, इस जवानी को मोबाइलों में, लूडो में, कैरम बोर्डों में खेलने में ना गुजारो। फला जगह से फला जगह जाने में, बेहयाई के कामों में जाने में, फुजूल वक्तों में अपना टाइम गुजारने में इन जवानी को बर्बाद ना करो। इन जवानी में सजदा भी करो, इन जवानी में मेहनत भी करो। इन जवानी में जो कर लोगे बुढ़ापे की आलम में नहीं कर पाओगे। फिर तीसरा सवाल होगा, अनमालिही, आए मालदारों, ये बताओ कि हमने तुम्हें दुनिया में माल दिया था, तुमने माल कमाया, लेकिन किस रास्ते से कमाया? रास्ता कौन सा था? जायज रास्ता था या नाजायज रास्ता? तरीका कौन सा था? किस एतबार से मालदार हुए? सवाल किया जाएगा, किस एतबार से मालदार हुए? मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल ने जन्नत और जहन्नम देखी,
जहन्नम में कुछ लोगों को ऐसे देखा, फराई तो अक्सर फुकारा, आपने जन्नत में गरीबों को देखा। मेरे भाइयों, गरीबों को देखा, मालदारों को नहीं। मैं पता चला मालदार अगर कोई है तो हिसाब देने में बड़ी मुश्किल है। हाँ, कुछ मालदार अगर माल कमाने के बाद अल्लाह की राह में सर्व करे तो हिसाब देने में आसानी होंगी, लेकिन जन्नत में सबसे ज्यादा फकीरों की तादाद देखी गई। तो आप फरमाते हैं, पूछा जाएगा कयामत के दिन, आए मालदारों, ये बताओ माल तुमने कहां से कमाया? वो कहेगा, आय अल्लाह, मैंने रिक्शा चला चला कर खूनों पसीने से माल कमाया, खूनों पसीने से माल कमाया। जंगल में लकड़ियां काट काट कर बाजार ले गए, इकट्ठी की, बाजार ले गए, मार्केट ले गए, पैसे कमाया। मेहनत और मजदूरी से पैसा कमाएगा वह इंसान बच जाएगा, अपने जब सवाल का जवाब देकर बच जाएगा। लेकिन मेरे भाइयों, हाँ, कोई अगर कहे जो हमने बैंक लूटी है, हमने सूद खाया है, जिस सूद के बारे में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, कसम है अल्लाह की, जिसने हराम का एक लुकमा खाया उसकी 40 रोज तक इबादत कबूल नहीं होगी। और किसी की परवरिश अगर सूद से हुआ हो, किसी की परवरिश सूद से हुई हो, मेरे भाइयों, उसके लिए जहन्नम बेहतर है। वो इंसान अगर सूद से पैसा कमाया है, मेरे भाइयों, वो फंस जाएगा, जवाब नहीं दे पाएगा। फिर मालदारों से और सवाल किया जाएगा, ये बताओ तुमने तो रास्ते तुम्हारे सही थे माल कमाने का, लेकिन उसको कहां खर्चा किया? फिर कहेगा माल तो सही रास्ते से कमाया, लेकिन खर्चा कहां से किया, खर्च कहां पे किया? वो जवाब देगा, आय अल्लाह, अगर कहीं जलसा हो रहा है, कहीं दीनी प्रोग्राम हो रहा है, कहीं मस्जिद है, कहीं मदरसा है, कहीं मस्जिद में इमाम है, कहीं मदरसे चल रहा है, मेरे भाइयों, कहीं मदरसा चल रहा है, कहीं बना चल रहे हैं, वहां अगर उन्होंने दिया है, किसी यतीम पर खर्च किया है, वो जवाब देकर पास हो जाएगा। लेकिन हाँ सुनो, अगर उसने हराम खाने में, गरीबों को नहीं देने में, बल्कि वो बदकारी के रास्ते में, बुराई के रास्ते में, शैतान जिस रास्ते पे उन्हें आमादा किया, उन रास्ते में खर्च किया, तो वो इंसान फंस जाएगा, वो इंसान फंस जाएगा। पांचवा और आखिरी सवाल होगा, वो आलिमों से किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा, बताओ तुमने दुनिया में इल्म सीखा, उस पर कितना खुद अमल किया और दूसरों को कितना अमल करवाया? पता चला खुद भी अमल करना है और दूसरों को भी तरकीब, दूसरों को भी कहना है कि तुम भी अमल करो। मेरे भाइयों, ये 5 सवाल कर लिए जाएंगे, उसके बाद जन्नती को जन्नत की तरफ ले जाएंगे फरिश्ता, और जहन्नमियों को जहन्नम की तरफ ले जाएंगे। जन्नतियों को अलग कर दिया जाएगा, जहन्नमियों को अलग कर दिया जाएगा। फरिश्तों से कहेगा, ओ फरिश्तों, जाओ जन्नतियों को जन्नत की तरफ ले जाओ, जहन्नमियों को जहन्नम की तरफ ले जाओ। मेरे प्यारे साथियों, फरिश्ता जन्नतियों को जन्नत की तरफ ले जाएंगे, जहन्नमियों को जहन्नम की तरफ ले जाएंगे। इतने में एक फरिश्ता आएगा और कहेगा, ए जन्नतियों रुक जाओ, ए जहन्नमियों रुक जाओ। उनके हाथ में मरे हुए दुम्बा होंगे, मरे हुए दुम्बा, यानी मौत को मरे हुए दुम्बा की शक्ल में लाई जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, और जन्नती से कहेगा, ऐ जन्नतियों, ये बताओ ये क्या है? जन्नती कहेंगे मौत, जहन्नमी कहेंगे मौत। मेरे भाइयों, जन्नती के सामने मौत को ज़िबा कर दिए जाएंगे, जहन्नमी के सामने मौत को ज़िबा कर दिए जाएंगे, और जन्नती से कहेंगे, ऐ जन्नतियों, जाओ जन्नत में हमेशा के लिए जाओ। ये ना सोचो कि तुम्हें अब दोबारा मौत आएगी, नहीं नहीं, इसलिए मौत को तुम्हारे सामने ज़िबा कर दिए गए, अब तुम्हें मौत दोबारा नहीं आएगी। मौत भी अल्लाह की एक मखलूक है और हर मखलूक को फना होना ही है। अल्लाह फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हया लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह फरमाता है, मैंने मौत को भी पैदा किया, मैंने जिंदगी को भी पैदा किया। जब मौत को अल्लाह पैदा किया तो मौत को भी एक दिन फना होना था, और मौत उस दिन फना हो जाएंगे। जन्नती जन्नत की तरफ चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम की तरफ जाएंगे। जहन्नमी जब जहन्नम के अंदर जाएंगे तो देखेंगे कुछ लोग पीप खा रहे हैं। मेरे भाइयों, फलैसा लहुल यौमा हाहुना हमीम वला तुआमुन इल्ला
मिन ग़िस्लीन, वहाँ पीप के अलावा कोई खाना नहीं दिया जाएगा। कहीं पर फरमाया इल्ला हमीमा व गस्साक़ा, मेरे भाइयों वहाँ सिर्फ पीप और लहू दिया जाएगा, वो फिर गरम गरम दिया जाएगा। जो जहन्नमियों के बदन से निकलेंगे वही उसका खाना दिया जाएगा। जहन्नमी जहन्नम के अंदर जाएंगे और देखेंगे कुछ लोग खून में गोता लगा रहे हैं, किसी का सर फटा पड़ा है, किसी के हाथ कटे पड़े हैं, किसी के पैर कटे पड़े हैं। जहन्नमी जहन्नम का मंजर देखेंगे मेरे भाइयों, और उन्हें ऐसा लगेगा कि हमने दुनिया में कौन से ऐसी अमल कर किया है, इसलिए आज हमें जहन्नम में जलना पड़ रहा है। मेरे भाइयों फिर जन्नती जन्नत के अंदर जाएंगे, जन्नती जन्नत के अंदर जाएंगे, हूरें उसका इस्तेकबाल करेंगी, हूरें उनका इस्तेकबाल करेंगी। दुनिया में खूबसूरत लड़की देख लेते हैं, खूबसूरत औरत देखते हैं, तो हम ये कहते हैं काश ये हासिल हो जाए। लेकिन ऐ मेरे नौजवानों, जन्नत में 73-72 हूरें होंगी। जब आप जन्नत के अंदर जाएंगे ये हूरें आपका इस्तेकबाल करेंगे। हूरुन ईनुन, उनकी कुछ सिफतें बयान की गई है, उनकी आंख बड़ी बड़ी होंगी मेरे प्यारे साथियों, और उनकी सिफत ये भी होगी कि उनको दुनिया में ना किसी इंसान ने उसको छोया होगा और ना किसी जिन ने छोया होगा, यानी वो आपकी पहली बीवी होगी। मेरे प्यारे साथियों जन्नती जन्नत के अंदर जाएंगे, इन नियामतों को देखेंगे, अंगूर देखेंगे, फल देखेंगे, जो झुके हुए होंगे उनके मुंह तक आ जाया करते हैं। इन नियामतों को देखेंगे, दूध की नहरें देखेंगे, शहद की नहरें देखेंगे, इन नियामतों को देखेंगे और कहेंगे ऐ अल्लाह दुनिया में तकलीफ झेल कर आए, बहुत अच्छा किए कि ये हमेशा वाली जिंदगी जिसमें नियामतें ही नियामतें हमें मिल गई है। फिर जहन्नमी जन्नतियों से सवाल करेंगे, जन्नती जहन्नमियों से सवाल करेंगे। फी जन्नाति यतसाअलून, जन्नती सवाल करेंगे, जहन्नमियों से पूछेंगे अनिल मुजरिमीन, आए जहन्नमियों, जहन्नमियों से जन्नती सवाल करेंगे। क्या सवाल करेंगे? मा सलककुम फी सकर, आए जहन्नमियों बताओ तुम्हें आज यहाँ क्यों जलना पड़ रहा है, जहन्नम में क्यों आए हो? दुनिया में तुम्हारा हमारा उठना बैठना एक साथ हुआ करता था, बिलवा मार्केट एक साथ जाया करते थे, लेकिन बताओ आज तुम्हें जहन्नम में क्यों जलना पड़ रहा है, तुम जहन्नम में क्यों आया हो, जहन्नम में ऐसी सजा तुम्हें क्यों मिली है? वो जवाब देंगे फला दोस्त ये एक साथ जाया करते थे ये ठीक है, लेकिन हाँ जब अजान दी जाती थी मुअज्जिन पुकारता था हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, जब अजान का वक्त होता था तो हम फरार हो जाते, तुम मस्जिद की तरफ जाया करते थे। वलम नकु मिनल मुसल्लीन, हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ा करते थे, हम दुनिया में यतीमों को खाना नहीं खिलाया करते थे, मिस्किनों को खाना नहीं खिलाया करते थे। वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, और हम क़यामत के दिन पर ईमान नहीं लाए थे, हम मजाक बना लिए थे कि क़यामत होगी या नहीं, इबादत करके क्या फायदा, दुनिया में जब तक हैं आराम से रहेंगे, सुख से रहेंगे, चैन से रहेंगे, पता नहीं उस दुनिया में क्या होगा नहीं होगा। बाप चले गए, दादा चले गए, परदादा चले गए, लकड़ दादा हकरदा सब चले गए, कोई आज तक वापस नहीं आया। दुनिया में हमें क़यामत पर यकीन नहीं था, इसलिए हमें जहन्नम में जलना पड़ रहा है, इसलिए हम जहन्नम में आए। मेरे भाइयों जहन्नम कैसी जगह है? अल्लाह फरमाता इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा, जहन्नम घात में है, घात उस जगह को कहते हैं मेरे भाइयों जहां से छुपकर दुश्मनों का इंतजार किया जाता है कि दुश्मन उस जगह से गुजरेंगे, दुश्मनों पर हमला किया जाएगा, दुश्मनों पर वार किया जाएगा, दुश्मनों पर अटैक किया जाएगा। घात उस जगह को कहते हैं जहां छुपकर दुश्मनों का इंतजार किया जाता है। मेरे भाइयों पता चला इस आयत से कि जहन्नम हमारा इंतजार कर रही है, जहन्नम हमारा इंतजार कर रही है। जिस जहन्नम में कौन लोग जाएंगे? लित्तागीन मआबा, ये सरकशों का ठिकाना है, ये फासिकों का ठिकाना है, ये काफिरों का ठिकाना है जो दुनिया में फसाद मचाते हैं, दुनिया में मेरे भाइयों दंगे मचाते हैं, काफिर दुनिया में शिर्क करते हैं, दुनिया में अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहराते हैं, उनके लिए जहन्नम ठिकाना है। लित्तागीन मआबा, हाँ उनकी वो कब तक जहन्नम में रहेंगे? हाँ दुनिया में हम और आप
یہ سوچتے کہ ہمیں جیل ہوا, ہم جیل سے نکل گئے. میرے بھائیوں لیکن کچھ قیدی ایسے بھی ہیں جن کو عمر قید کی سزا ملتی ہے. جہنم میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو نکال دیا جائے گا, جن کو آزاد کر دیا جائے گا اگر ان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو, ورنہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. لیکن ہاں پھر بھی کتنے دن تک رہیں گے؟ لابثین فیہا احقابا, وہ جہنم میں مدتوں تک پڑے رہیں گے, مدتوں تک پڑیں گے, کہ لمبی پیریڈ ہو جہنم میں رہیں گے. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا, نہ وہاں کوئی ٹھنڈک دی جائے گی اور نہ ہی پانی, نہ ہی پینے کی چیز کوئی دی جائے گی, نہ ہی پانی دیا جائے گا. میرے بھائیوں جہنم میں انہیں کچھ نہیں دیا جائے گا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا. میرے بھائیوں انہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس دنیا میں انہوں نے گناہ کیے, ان کی سزا کرتوتوں کی وجہ سے انہیں پورا پورا ان کا بدلہ دیا جائے گا. جہنم کیسی جگہ ہے؟ جہنم گھات میں ہے, ہمارا اور آپ کا انتظار کر رہی ہے. جس جہنم کے بارے میں کہا گیا جہنم میں جہنمیوں کو ڈالتا جائے گا, جہنم میں جہنمیوں کو ڈالا جائے گا, پھر بھی جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا. جہنم کا پیٹ کتنا بڑا خطرناک ہے, کتنا بڑا ہے. میرے بھائیوں جہنم کہیں گے حل من مزید, حل من مزید, اور کوئی جہنمی ہے تو لاؤ, اور کوئی جہنمی ہے تو لاؤ. اللہ رب العالمین اپنے پیر کو جہنم میں ڈال دیں گے. جب اپنے پیر کو جہنم میں ڈالیں گے تو جہنم کہے گی قط قط, بس بس. یعنی جہنم کا پیٹ کتنا بڑا خطرناک ہے. 100 آدمیوں میں 90 آدمی جہنمی نکلیں گے ایسا لگ رہا ہے میرے بھائیوں, لیکن کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ہے, فیصلہ نہیں کر سکتا ہے, لیکن ایسا لگ رہا ہے 100 آدمیوں میں 90 آدمی جہنمی ہوں گے, پھر بھی جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا. اور جہنم کہیں گے حل من مزید, حل من مزید, اور کوئی ہے, اور کوئی ہے, لاؤ میں اپنے اندر اسے سما لوں گی. میرے بھائیوں اس جہنم کی گہرائی کتنی ہوگی؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں, ایک اچانک آواز آئی, دھماکے کی آواز آئی. ہم نے پوچھا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول یہ کیسی آواز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ کیسی آواز ہے؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ اور اللہ تعالیٰ, اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ ایک پتھر ہے جس کو جہنم میں آج سے 70 سال پہلے پھینکا گیا, اور وہ پتھر دھیرے دھیرے جا کر جہنم کی تہ تک آج پہنچا. ایک پتھر کو پھینکا گیا 70 سال پہلے, وہ پتھر دھیرے دھیرے آج جہنم میں جا کر پہنچا. میرے پیارے ساتھیوں یہ تھی جہنم کے بارے میں کچھ باتیں. پتہ چلا جہنم کتنا خطرناک. اس دن کی ہولناکی سے ہم اور آپ کیسے بچے میرے بھائیوں؟ اس کی گہرائی دیکھیے, سب کو ڈالا جائے گا, پھر بھی جہنم کہیں گے اور چاہیے اور چاہیے. اب ایک اور عنوان ہے کہ حالت حاضرہ. 10 سے 15 منٹ آپ رکیے. حالت حاضرہ یعنی ہم اور آپ یہ سوچیں کہ ہم پر جو یہ مصیبتیں آئی ہے یہ کہیں ایسا ہو کہ یہ ہمارے ہی کرتوت کا نتیجہ ہے میرے بھائی, ہمارے ہی کرتوت کا نتیجہ ہے. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب کھانے کعبہ کی حفاظت کی ضرورت پڑی تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل کو بھیج دیا اور کھانے کعبہ کی حفاظت کر لی. ہم سے ہماری مسجد بابری چھین لی گئی, مسجد اقصی چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن کیا وجوہات ہے کہ اللہ ہماری دعا قبول نہیں کر رہے؟ ان کی وجوہات یہی ہے کہ ہم اور آپ حلال کو چھوڑ دیے, حرام کو اپنا لیے ہیں, جن کی وجہ سے ہماری اور آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بھائیوں ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ دعا کریں گے لیکن حرام کھائیں گے, جن کی وجہ سے ان کی دعا قبول نہیں ہوگی. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہمت نہ ہارے, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور اپنا اعمال دکھاتے رہے, اپنے اعمال کو مضبوط بنائیے, اپنے ایمان کو پختہ تر بنائے. اللہ فرماتا ہے وہ اگر اپنے ایمان کو پختہ بنائیں گے تو ہم مزید ان کا ساتھ دیں گے, لیکن ہاں وہ انسان اگر گناہ کرتا جائے اللہ رب العالمین اس کی رسی کو ڈھیل دے دیتا ہے اور وہ انسان چلتا جاتا ہے گناہ کرتا جاتا ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے ایک دن میری پکڑ انہیں ضرور کرے گی, ان رسی کو ہم کھینچ لیں گے اور اس کو پکڑ لیں گے کا مطلب یہ ہے کہ ان پر عذاب آ جائے گا,
उन पर मुसीबत आ जाएगी। आज देख लीजिए मेरे भाइयों, जिस इजराइल को बसाने वाला फिलिस्तीन है, जो इजराइल नंगे थे, भूखे थे, प्यासे थे, जिनके पास रहने के लिए जमीन नहीं थी, मुसलमानों ने ही बसाया, फिलिस्तीन ने इजराइल को बसाया, फिलिस्तीन ने इजराइल को जगह दी। वो फिलिस्तीनों पर आज कैसे कब्जा कर रहा है और फिलिस्तीनियों को अपने अंडर में ले रहा है, उनकी जायदाद छीन रहे हैं, उनकी जमीन छीन रहे हैं, उनकी जमीन हड़प रहे हैं। लेकिन इजराइल से पूछो, उनका बाप अमेरिका उनको जगह नहीं दिया, उनके जितने भी मुल्क थे उनको जगह नहीं दिया। अगर उनको जगह देने वाली कोई कौम है, जगह देने वाला कोई मुल्क है तो वो अरब मुल्क है, जगह देने वाली कौम कोई है तो वो मुसलमान है। लेकिन हाँ, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। मेरे प्यारे साथियों, चोरी ऊपर से सीना चोरी, कोई एक कहावत है बंगला में या उर्दू ही में मान लीजिए, एक कहावत है कि मेरी बिल्ली मुझे ही में आओ। आज फिलिस्तीन अगर उनको जगह ना देते, फिलिस्तीन पर वो चढ़ाई नहीं कर सकते थे। मुसलमानों ने कुछ गलतियां की, आज उन्हें सजा मिली। मेरे प्यारे साथियों, इसीलिए तो शेर में कहा गया कि खता लम्हों ने की और सजा सदियों ने पाए। आज अगर इजराइल को उस वक्त अगर जगह ना दी जाती, इजराइल को बसाया ना जाता, तो आज इजराइल फिलिस्तीन पर कैसे चढ़ाई करता। ऊपर से चढ़ाई किया मुसलमानों का मामला था, यहूदियों का मामला था। यह मुसलमानों को मारा, मुसलमानों को पीटा, मुसलमान के बच्चों को मलबा के अंदर दफन कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, ऊपर से हमारी धार्मिक स्थल मस्जिद अक्सा को छीनने की भी कोशिश कर रहे हैं, मस्जिद अक्सा को भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमानों जागिए, अपने अंदर जागरूकता पैदा कीजिए, इसलिए कि ये मुसलमानों का मामला नहीं, ये जाती मामला नहीं। उस मस्जिद अक्सा से हमारा रिश्ता उस वक्त तक जुड़ा रहेगा जब कुरान की आयत चीख चीख कर कहती रहेगी, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। जिस मस्जिद अक्सा का जिक्र कुरान में मिलता रहेगा, जिस मस्जिद अक्सा का नाम कुरान में होता रहेगा, हम उसको कैसे छोड़ सकते हैं। कितने ऐसे अंबिया की कब्र है जो फिलिस्तीन में बसी हुई है, जो फिलिस्तीन में उनके कब्र मौजूद है। मेरे भाइयों, फिलिस्तीनी से हमारा रिश्ता पुराना है, फिलिस्तीनी से हमारी दोस्ती पुरानी है। इसलिए मुसलमानों, ये मायूस ना हो और उनके हक में दुआ करते रहो और अपने अमाल को सही बनाते रहो। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, ये जो यहूद है, ये जो नसारा है, आपको मुल्क से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आपको वक्ती तौर पर दिखाएगा कि ये आपकी दोस्त है, आपकी दोस्त बन गए। लेकिन नहीं, अल्लाह कुरान में फरमाता है, आए लोगों, यहूद और नसारा कभी तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता है। हाँ, दोस्त उसी वक्त होगा जब आप उनके दीन पर चलने लगेंगे, उनके मजहब पर चलने लगेंगे। आज देख लीजिए कितने ऐसे मुसलमान हैं, जो 25 दिसंबर आ रहा है, जीसस मसीह ईसा अलैहिस्सलाम का जन्मदिन मनाया जाएगा। कितने मुसलमान उनकी पार्टी में शामिल होंगे, कितने मुसलमान ऐसे हैं जो अपना जन्मदिन मनाते हैं। ये जो जनवरी सामने आ रहे हैं, इसमें भी कितने मुसलमान ऐसे जो बड़े जोर शोर के साथ नए साल मनाते हैं और नए साल की मुबारकबादी देते हैं। अगर ऐसा करेंगे, यहूद आपसे खुश होंगे, नसारा आपसे खुश होंगे, उसके अलावा वो कभी तुमसे खुश नहीं हो सकते। और वो खुश होंगे तब जब आप इस्लाम को छोड़ देंगे, दीन से निकल जाएंगे। अल्लाह फरमाता है, वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुवा काफिरुन। जो शख्स मुर्तद हो जाएगा, दीन को छोड़ देगा, वो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, लेकिन सुनो, फउलाइका हबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह। उसके दुनिया में भी अमल बर्बाद हो जाएंगे, आखिरत में भी जाया हो जाएंगे। वो अल्लाह का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अगर हालत कुफ्र में मर गए, उसका ठिकाना जहन्नम है, वो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो मुर्तद हो जाए, इस्लाम ने उसकी सजा मुतय्यन की है कि उसको कत्ल किया जाए। मन बदला दीनहु फख्तुलू, जिसने अपना दीन बदल लिया उसको कत्ल कर दिया जाए। मेरे प्यारे साथियों, एक सजा और ये है, ये कि ईसाई इस्लाम ले आया, आपने उन्हें लिखने का काम दिया, वही नाजिलो, कुरान की आयतें नाजिलो, तो लिखने का काम किया करो। वो लिखता रहा, लिखता गया, फिर दोबारा ईसाई बन गया, दोबारा वो ईसाई बन गया। ईसाई बनने के बाद नबी की शान में गुस्ताखी की, नबी को गालियां देने लगे,
نبی کے بارے میں کہنے لگے اے فلاں نبی یہ محمد ہے، ان کو کچھ نہیں آتا ہے، جتنا میں نے ان کو لکھ کے دیا اتنا ہی جانتا ہے۔ نبی کے شان میں گستاخی، انتقال ہوا، ان کی قوم نے انہیں قبر میں دفن کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، دوسرے دن قبر نے اس کو باہر نکال پھینک دیا۔ اس کی قوم نے سمجھا یہ ضرور محمد کا کام ہے، یہ ان کے ساتھی کا کام ہے۔ پھر اور گہری قبر کھودی گئی، اس کو اس کے اندر ڈالا گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، پھر دوبارہ قبر نے اس کو نکال دیا، اور گہری قبر کھودی گئی، پھر اس کو دفن کیا گیا۔ پھر دیکھتا ہے کہ تیسرے دن بھی قبر نے اس کو نکال دیا۔ عیسائی سمجھ گئے یہ مرتد ہو گئے، یہ دین بدل لیے، ان نبی کے شان میں گستاخی کیے، اس لیے ان کی سزا یہ ہے، اس لیے ان کا انجام ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس دور میں ضرورت ہے کہ ہم اپنے پیر پہ کھڑے ہوں، کسی کا سہارا نہ لیں۔ اسلام ہی ہمارے لیے کافی ہے، کیونکہ اسلام مکمل دین ہے۔ عیسائی سے آپ پوچھیں شادی کا طریقہ کیا ہے، نہیں بتا پائیں گے، لیکن کسی مسلمان سے پوچھیں وہ بتا پائیں گے۔ چلنے کا طریقہ، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، لیٹنے کا، سونے کا، جاگنے کا، پیشاب و پاخانہ، قضائے حاجات، بیوی سے ملنے کا، سب طریقہ اسلام کے اندر موجود ہے۔ اس لیے ہمیں کسی کا سہارا لینا ضروری نہیں ہے، ہمارے لیے اسلام کافی ہے۔ آج مسلمانوں پر یہ عذاب اور یہ مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں میرے بھائیوں، اس کی کہیں نہ کہیں ہماری غلطی ہے، ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اس لیے ہم اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری اللہ ہمارے اندر جو کمیاں ہیں تو ان کو دور کر دے، اے اللہ ان کو دور فرما، ہمارے اندر جو غلطیاں ہیں ان کو ختم کر دے اور ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ باری اللہ ملک کے اندر جو مسلمان کاٹے جا رہے ہیں تو ان کی حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ یہ ملک جو تہس نہس کے دہانے پہ ہے تو اس ملک کی حفاظت عطا فرما۔ اے باری اللہ ان فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ مظلوم فلسطینی مسلمانوں کے حق میں دعا کر رہا ہوں، اے اللہ ان کے ملک سے تو بلائی کو ٹال دے، تو عذاب کو ٹال دے، اور ان اسرائیلی ظالم اسرائیلیوں کو یا تو ہدایت دے دے یا زمین سے لست و نابود کر دے، انہیں مغلوب کر دے، فلسطینیوں کو غالب کر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔